हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेक वे इजी में। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एसएससी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 2022। तो आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स देखेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन देखे थे। तो आज उसी पेपर के अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो देखते हैं। एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम पेपर 2018 हेल्ड ऑन 24 जनवरी 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था ये, और उसका पार्ट 2 आज देखेंगे हम। चलो तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, पहले 50 तो हमने देखे हैं, आज ये 50 क्वेश्चंस देखते हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 51, which surface hardening process gives maximum hardness to the surface? Options: 1 pack hardening, 2 nitriding, 3 cyaniding, and 4 is induction hardening. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, इसका आंसर तो आपको पता है, ये पिछले वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो नाइट्राइडिंग इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, डैश डैश इज नॉट अ सिरेमिक मटेरियल। ऑप्शंस: ऑप्शन 1 ग्लास, ऑप्शन 2 बैकलाइट, ऑप्शन 3 क्ले, एंड ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा कि इनमें सा कौन सा मटेरियल सिरेमिक नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ये पिछला, हाँ, ऑप्शन नंबर 2, बैकलाइट इज नॉट अ सिरेमिक मटेरियल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रूफ स्ट्रेस रिलेटेड? ऑप्शंस: ऑप्शन 1 elongation, ऑप्शन 2 नेकिंग, ऑप्शन 3 yielding, and option 4 fracture. And the correct answer is option 1. Option 1, ये elongation is the correct answer for proof stress. Proof stress, स्ट्रेस या है तो elongation तो आना ही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 54, मैकेनिकल सील्स आर यूज टू, ऑप्शन 1 to prevent vibrations, option 2 to prevent leakages, option 3 to reduce friction, and option 4 to balance the equipment. And the correct answer is option number 2, to prevent the leakages. Option 2 is correct answer. Next question, question number 55, noise level in case of an aircraft is: option 1 generally less than 100 dB, option 2 generally more than 100 dB, and option 3 always more than 100 dB, and option 4 in the range of 60 to 80 dB. And the correct answer is 100 dB, always more than 100 dB. This is like, sorry, my mistake, this is always more than 100 dB. Chalo next question, question number 56, the tool life of a tool is said to be over if: options: option 1 the tool has failed and a poor surface is obtained, option 2 sudden increase in power and cutting forces take place and chatter appears in a machining, option 3 overheating and fuming due to friction occurs in addition to dimensional instability, and option 4 all options are correct. And the correct answer is option 4, all options are correct, all of the above. ये सभी आंसर्स सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द ग्राफाइट मोल्ड्स आर जनरली यूज फॉर कंटिन्यूस कास्टिंग मेथड बिकॉज: ऑप्शंस 1 द मेटल weight the mold slightly, option 2 only a small film of lubricating oil is required, and option 3 they are self lubricating, and option 4 they are comparatively cheaper. And the correct answer is option number 4, they are self lubricating. देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ceramic tools are fixed to tool by the following process: options 1 soldering, option 2 brazing, option 3 welding, and option 4 is clamping. And the correct answer is option 2, my mistake, हाँ, the correct answer is option 2 brazing.
ब्राजिंग इज द करेक्ट आंसर, ब्राजिंग प्रोसेस। चलो क्वेश्चन नंबर 59, गियर ट्रूथ वर्नियर इज यूज टू ऑप्शन 1 टू मेजर द addendum, ऑप्शन 2 टू मेजर द addendum and dedendum, ऑप्शन 3 टू मेजर द circular pitch, and option 4 to measure the circular pitch line and thickness of both, and the correct answer is option number 4 to measure the to measure the pitch line and thickness of both. गेयर टूथ वर्नियर इज यूज टू मेजर द पिच लाइन एंड थिकनेस ऑफ बोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ बॉयलर। ये देखो यहाँ पे ये बॉयलर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, डी ओनली। देखो इसका ये बॉयलर के लिए होता है W इज इक्वल टू H2 माइनस H1 प्लस Q, मतलब डिस्चार्ज। चलो ये बॉयलर के लिए ये ध्यान में रखना, ये बॉयलर वर्ड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्यूल्स आर। ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, एंड ऑप्शन 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो ये सभी तो होते हैं लेकिन उसमें मेजर तो ये दोनों ही होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, यही दोनों मेजर होते हैं फ्यूल में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन। Next question, question number 62. The general gas equation is given as options PV is equal to MT, option 2 P upon V is equal to MT, option 3 PV is equal to MRT, and option 4 P upon V is equal to MRT। देखो यहाँ पे तो आपको पता ही चला होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है करके, PV is equal to MRT। ये देखो ये सही आंसर है इसका, ये सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू। चलो बताओ इसका आंसर बताओ आप मुझे। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसका आंसर है 22.41 मीटर क्यूब एट एनटीपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 22.41 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 64, internal combustion engine works on option 1 first law of thermodynamics, option 2 second law of thermodynamics, option 3 zeroth law of thermodynamics, and option 4 none of this, and here is the correct answer, first law of thermodynamics। IC engine is works on the first law of thermodynamics। Next question, question number 65, the first and second laws of thermodynamics helps to derive the following properties respectively. Option 1 pressure and temperature, option 2 temperature and entropy, option 3 pressure and entropy, and option 4 temperature and enthalpy, and here is the correct answer is option 2। ये देखो फर्स्ट लॉ तो टेम्परेचर के बारे में बताता है हमें, और सेकेंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। एंड क्वेश्चन नंबर 66, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। ये तो इजी है, आप इजी बता दोगे, तो इसका आंसर है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आइसोमेट्रिक प्रोसेस। वॉल्यूम प्रोसेस को ही आप आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, होल्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 67, stream and velocity potential functions for a two-dimensional flow field given by u is equal to 2x and v is equal to minus 2y r। ये देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप इजी से कर दोगे। तो बताओ इसका आंसर बताओ। चलो तो मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, psi function is equal to x square minus y square and phi function is equal to 2xy।
ये देखो, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैंने पीडीएफ में दे दिया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस ओबेइंग वन डेर वाल्स equation P plus A upon V2 in bracket V minus B is equal to RT depends on its options 1 temperature, 2 temperature and pressure, 3 temperature and specific volume, and last one 4 pressure and specific volume. And the correct answer is option number 3 temperature and specific volume. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन 1 एंट्रोपी, ऑप्शन 2 viscosity, option 3 temperature, and option 4 specific heat at constant volume. Which of the above properties of a system is extensive? तो इजी क्वेश्चन हो गया ये तो बहुत। चलो देखते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन दिस लिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये देखो, यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कूलिंग टावर में वाटर का कूलिंग प्रोसेस पूछा गया है। तो वैसे तो ये सब कूलिंग के ही प्रोसेस है, लेकिन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इवापोरेशन। इन कूलिंग टावर इवापोरेशन इज द यूज्ड फॉर वाटर कूलिंग। इवापोरेशन, ये देखो, ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, ये पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी लगता है लेकिन डिफिकल्ट है। चलो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 इवापोरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। व्हाइल स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शंस 1 डिलीवरी वॉल्व इज केप्ट वाइड ओपन, ऑप्शन 2 डिलीवरी वॉल्व इज केप्ट क्लोज, ऑप्शन 3 इनलेट वॉल्व इज केप्ट क्लोज, एंड ऑप्शन 4 डिलीवरी वॉल्व इज ओपन स्लाइटली। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 डिलीवरी वॉल्व इज केप्ट क्लोज। जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करते हैं तो उसका डिलीवरी वॉल्व क्लोज ही रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ब्लेड्स आर ऑप्शन 1 बेंट बैकवर्ड, ऑप्शन 2 बेंट फॉरवर्ड, ऑप्शन 3 स्ट्रेट, एंड ऑप्शन 4 buried to have aerofoil section. And the correct answer is option 3 straight. For maximum efficiency, the blades are to be straight. And next question, question number 73. One dimension flow is one options in involving zero transverse components of flow, option 3 in uniform flow, option 3 in steady uniform flow, and option 4 none of these. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इन्वॉल्विंग जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज वेयर बी is width of rectangle section, D and width of rectangular section, and D is depth of water। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। चलो, तो उसका ऑप्शंस देखते हैं हम, बी डी अपॉन 2D प्लस बी, एंड ऑप्शन 2 बी डी अपॉन डी प्लस बी, ऑप्शन 3 2BD अपॉन डी प्लस बी, एंड ऑप्शन 4 BD अपॉन 2D प्लस बी। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर बताओ। बी यानी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, एंड डी यानी डेप्थ ऑफ वाटर। तो बताओ इसका आंसर बताओ मुझे। चलो, तो चलो मैं ये बता देता हूँ, इसका आंसर है BD अपॉन 2D प्लस बी, और ये ब्रैकेट में। चलो, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे कहा है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 75। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट और मोशन इज called as options 1 hydraulics,
ऑप्शन 2 फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑप्शन 3 अप्लाइड मैकेनिक्स एंड ऑप्शन 4 काइनेमेटिक्स। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन ऑप्शंस रो इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, ऑप्शन 2 रो इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन डी एंड ऑप्शन 4 पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी एंड ऑप्शन 4 इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 16 सिग्मा अपॉन डी। देखो यहाँ पे तो इसका आंसर होता है, ये देखो रो इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डायमीटर यानी डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखो यहाँ पे क्या है, हाँ ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन अ ओपन चैनल फॉर लैमिनार फ्लो कैन बी अज्यूम्ड एज ऑप्शन 1 ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, ऑप्शन 2 ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप and option 3 offer a least resistance to compression and option 4 none of this, and the correct answer is option 3 offer least resistance to compression. This is correct answer. देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78, अ मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। देखो मैनोमीटर तो हम किसके लिए यूज करते हैं बता दीजिए। चलो ऑप्शन 1 है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन चैनल, ऑप्शन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन 3 प्रेशर इन पाइप्स एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। बता दो इसका आंसर। इसका आंसर ये है ऑप्शन 3 प्रेशर इन पाइप। मैनोमीटर इज यूज फॉर प्रेशर इन पाइप्स। देखो इसमें का एक क्वेश्चन तो हमका होता ही है एग्जाम में, मैनोमीटर और पिटॉट ट्यूब और ओरिफिस और वेंचुरी, इनमें से एक ऑब्जेक्ट तो पूछा ही जाएगा कि किसके लिए में इसका यूज पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कर लेना याद से। देखते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, द लेंथ ऑफ माउथ पीस एज कंपेयर टू डायमीटर इज ऑप्शंस, ऑप्शन 1 5 to 6 times, option 2 6 to 8 times, option 3 2 to 3 times and option 4 1 to 1.5 times, and the correct answer is option number 3 2 to 3 times होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, द लोअर क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू। चलो तो ऑप्शंस 100, ऑप्शन 2 200, ऑप्शन 3 1000 and option 4 is 2000, and the correct answer is option 4 2000 is the correct answer. Next question. Question number 81, if a thin plate is held normal to the flow, the viscous drag on it is option 1 maximum, option 2 minimum, option 3 0 and option 4 is none of this, and the correct answer is option number 3 0 0 is the correct answer. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82, द क्रॉस सेक्शन ऑफ सिपोलेटी वेयर इज ऑप्शंस, ऑप्शन 1 रेक्टेंगुलर, ऑप्शन 2 ट्रायंगुलर, ऑप्शन 3 ट्रेपेजॉइडल, ऑप्शन 4 इज नन ऑफ दिस। देखो तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 ट्रेपेजॉइडल, TRAPEZOIDAL। देखो ये है इसका आंसर। नाम थोड़ा कठिन है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन देयर इज अ नो एयर लेफ्ट बिलो द nappe it is known as option 1 free nappe, option 2 depressed nappe, option 3 adhering nappe and option 4 is all options are correct। देखो ऑल ऑप्शंस तो करेक्ट होगे नहीं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 adhering nappe, adhering nappe। ये सारे क्वेश्चंस पिछली ईयर के एग्जाम के हैं, तो इन्हें ध्यान से करके जाना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, इन केस ऑफ रिएक्शन टर्बाइन ऑप्शन 1 P1 इज इक्वल टू P2,
Option 2, P1 is greater than or P2. Option 3, P2 is less than P2. And option 4 is none of this. And here's the correct answer is option 2. Sorry, my mistake. Here's the correct answer is option 2. P1 is always greater than P2. इसे ध्यान में रखना है. इन reaction turbine, pressure 1 is always greater than pressure 2. Question number 85. The overall efficiency of Pelton wheel is about. इसे रट के ही जाना होगा आपको. तो इसका ऑप्शन 1 0.55, ऑप्शन 2 0.65, ऑप्शन 3 0.85 एंड ऑप्शन 4 इज 0.99. एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 0.85. और वैसे आप ऐसे भी लग सकते हैं 85%. ये तो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, वैसे बताने के लिए 85%. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अल्फा इज अ रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल एंड फाई इज द shear angle and nu is the cutting velocity, then the velocity of chip sliding along the shear plane is given by. देखो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वेयर न्यू cos alpha upon sin phi upon minus alpha. This is the correct answer. तो याद में रखना दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर फोर्स vortex? ऑप्शन 1 टर्न्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू अ फ्री vortex. ऑप्शन 2 always occurs in a conjunction with a free vortex. Option 3 has a linear velocity directly proportional to the radius. And option 4 has the linear velocity inversely proportional to the radius. And correct answer is option number 3 has the linear velocity is directly proportional to radius. ये R है, माफ करना, V is directly proportional to R radius. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 88. Why is multi-stagging in centrifugal pumps used? For high flow rate, option 2 for high head, option 3 for high speed, and option 4 for high efficiency. And the correct answer is option number 2 for high head. High head is the correct answer. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 89. द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ अ Pelton turbine is 70% if the mechanical efficiency is 85%. What is the hydraulic efficiency? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 0.824 is the hydraulic efficiency. Next question. Question number 90. Which of the following water turbines does not require a draft tube? Option 1 propeller turbine, option 2 Pelton turbine, option 3 Kaplan turbine, and option 4 is Francis turbine. And the correct answer is option 2 Pelton turbine. माफ करना, PELTON turbine. देखो पेल्टन टर्बाइन को ड्राफ्ट टिप की जरूरत नहीं होती है, ये याद में रखना. देखते हैं अगला क्वेश्चन 91. विच फेनोमेनन विल ऑकर व्हेन द वैल्यू एट द डिस्चार्ज एंड ऑफ द पाइप कनेक्टेड टू द रिजर्वायर इज सडनली क्लोज? ऑप्शन 1 कैविटेशन, ऑप्शन 2 इरोजन, ऑप्शन 3 हैमरिंग, एंड ऑप्शन 4 इज सर्जिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हैमरिंग इज द करेक्ट आंसर. हैमरिंग is the correct answer. देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 92. The pressure drop of a relatively low Reynolds number flow in a 600 mm and 30 meter long pipeline is 70 kilopascal. What is the wall shear stress? ये देखो यहाँ पे तो shear stress ही निकालना है आपको. टाउ कहते हैं इसको, shear stress को.
तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने दिया है, तो मैं इधर ही देता हूँ आंसर आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 355 पास्कल। ये देखो कॉमन सी बात है, किलो पास्कल को आपको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा और को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा ही इसका आंसर आएगा। देखो यही गलती करते हैं यहाँ पे लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, यूनिफॉर्म फ्लो ऑकर्स व्हेन ऑप्शन 1 द फ्लो इज स्टेडी, ऑप्शन 2 द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ऑप्शन 3 साइज एंड शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन अ पर्टिकुलर लेंथ रिमेन कांस्टेंट, एंड ऑप्शन 4 साइज एंड क्रॉस सेक्शन चेंज यूनिफॉर्मली अलोंग लेंथ। तो इसका आंसर आप लोग को तो समझ में आई होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साइज एंड शेप of the cross section in a particular length remains constant। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, जनरल एनर्जी इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑप्शन 1 स्टेडी फ्लो, ऑप्शन 2 turbulent flow, ऑप्शन 3 laminar flow, and option 4 non uniform flow। and here the correct answer is option number 4 non uniform flow। non uniform, देखो non uniform flow ये याद रखने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन रखना ही होगा आपको, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये। देखो तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, द पाइप सिस्टम कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर सेम। ऑप्शन 1 फ्रिक्शन लॉस एंड फ्लो, ऑप्शन 2 लेंथ एंड डायमीटर, ऑप्शन 3 फ्लो एंड लेंथ, एंड ऑप्शन 4 फ्रिक्शन फैक्टर एंड डायमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 फ्रिक्शन लॉस एंड फ्लो are the same quantities। Of question number 96, water by evaporating cooling can theoretically be cooled down to options 1 atmospheric temperature, option 2 air's dry bulb temperature, option 3 air's wet bulb temperature, and option 4 air's dew point temperature। and the correct answer is option 4 air's dew point temperature। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 97, एनी चेंज इन अ लोड इज एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग फॉलोइंग पैरामीटर ऑन टर्बाइन। तो उसके ऑप्शंस देखते हैं, नेट हेड, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हेड, ऑप्शन 3 ब्लेड वेलोसिटी, एंड ऑप्शन 4 इज फ्लो। एंड हियर्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 फ्लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, अ टर्बाइन पंप is basically a centrifugal pump equipped additionally with option 1 adjustable blade, option 2 backward curved blades, option 3 vane diffusion casing, option 4 inlet guide blades। and the correct answer is option number 3 is correct answer for this question, vane diffusion casing। एंड आज के वीडियो का 99वां क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील इज, ये तो इजी क्वेश्चन है, इम्पल्स टर्बाइन। पेल्टन व्हील इज ऑब्वियसली अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे हमारा मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर खत्म हो जा रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। The guide angle as per the aerofoil theory of a Kaplan turbine blade design is defined as the angle between option 1 lift and resultant force, option 2 drag and resultant force, option 3 lift and tangential force, and option 4 is lift and drag। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो देखो आखिरी क्वेश्चन का आंसर है 1 लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स। तो चलो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। आज हमने देख लिया है एसएससी जूनियर इंजीनियर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपके लिए मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर कराता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से मेक वे इजी से। चलो तो ठीक है, निकलते हैं, बाय बाय।